जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 3 श्लोक 33। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। जिस प्रकार समस्त नदियों का जल जो स्वाभाविक ही समुद्र की ओर बह रहा है, उसके प्रवाह को हठ पूर्वक रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार समस्त प्राणी अपनी अपनी प्रकृति जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार जो स्वभाव के रूप में प्रकट होते हैं के अधीन होकर प्रकृति के प्रवाह में पड़े हुए प्रकृति की ओर जा रहे हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य हठपूर्वक सर्वथा कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। हाँ, जिस तरह नदी के प्रवाह को एक ओर से दूसरी ओर घुमा दिया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने उद्देश्य का परिवर्तन करके उस प्रवाह की चाल को बदल सकता है, यानी राग द्वेष का त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति में सहायक बना सकता है। अभिप्राय यह है कि कर्मों को रोकने में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, उसे कर्म तो करने ही पड़ेंगे, परंतु सद्गुणों का आश्रय लेकर अपनी प्रकृति का सुधार करने में सभी स्वतंत्र हैं। ज्यों-ज्यों उनकी प्रकृति में सुधार होगा, त्यों-त्यों क्रियाएं अपने आप ही विशुद्ध होती चली जाएंगी। अतएव भगवान की शरण होकर अपने स्वभाव का सुधार करना चाहिए, इसी से उत्थान हो सकता है। समस्त गुणों से अतीत ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। उसके अंतःकरण में भी पूर्वार्जित प्रारब्ध के संस्कार रहते हैं और उसी के अनुसार उसकी बुद्धि, मन और इंद्रियों द्वारा प्रारब्ध भोग और लोक संग्रह के लिए बिना कर्तापन के क्रियाएं हुआ करती हैं। उन्हीं क्रियाओं का लोक दृष्टि से ज्ञानी में अध्यारोप करके कहा जाता है कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। ज्ञानी की क्रियाएं बिना कर्तापन के होने से राग द्वेष और अहमता ममता से सर्वथा शून्य होती हैं। अतएव वे चेष्टा मात्र हैं, उनकी संज्ञा कर्म नहीं है। Even a wise man acts in accordance with his own nature. Beings will follow nature. What can restrain do? Men crawling on the lowest evolutionary ladder, overwhelmed by their own animal passions, find themselves incapable of renouncing them, and are therefore incapacitated to walk the path of action. Only those who have passion for progress, rajoguna, enthusiasm and activity alone can follow this sacred path and benefit themselves. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 33. സദൃശം ചേഷ്ടതി സ്വസ്വാഹ പ്രകൃതിർജ്ഞാനവാനപി പ്രകൃതിയാന്തി ഭൂതാനി നിഗ്രഹ കി കര്യഷ്യതി. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അതായത് അവ അവയുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് പരിശ്രമിക്കുന്നു അഥവാ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആരുടെയെങ്കിലും ശാഠ്യം ഇതിൽ എന്തു ചെയ്യും, അഥവാ ശാഠ്യത്തിന് എന്ത് പ്രസക്തി?
സഹജമായി കടലിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന എല്ലാ നദികളിലെയും ജലപ്രവാഹത്തെ ശാഠ്യത്തോടെ തടയാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവയുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അതായത് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ രൂപത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നു. അതിനാൽ ഒരു മനുഷ്യനും ശാഠ്യത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതെ, ഒരു നദിയുടെ ഒഴുക്ക് ഒരു വശത്ത് നിന്ന് മറുവശത്തേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ഒരു മനുഷ്യന് തൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം മാറ്റിക്കൊണ്ട്, അതായത് ആസക്തിയും വിദ്വേഷവും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒഴുക്കിൻ്റെ ദിശ മാറ്റാൻ കഴിയും. ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്ക് ഈ പ്രവൃത്തികളെ സഹായകരമാക്കാൻ അവന് കഴിയും. ഇതിനർത്ഥം ഒരു മനുഷ്യന് പ്രവൃത്തികൾ നിർത്താൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അവൻ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഗുണങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിച്ച് തൻ്റെ സ്വഭാവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നതാണ്. അവരുടെ സ്വഭാവം മെച്ചപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ യാന്ത്രികമായി ശുദ്ധമാകും. അതിനാൽ ഒരാൾ ഈശ്വരനിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച് തൻ്റെ സ്വഭാവം മെച്ചപ്പെടുത്തണം. ഇതിലൂടെ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ. ജ്ഞാനിയായ ഒരാൾ പോലും എല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമായി തൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവൻ മുമ്പ് നേടിയ വിധിയുടെ ഫലം അവൻ്റെ മനസാക്ഷിയിൽ, ആത്മാവിൽ നിലനിൽക്കുകയും അതനുസരിച്ച് അവൻ്റെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വിധി ആസ്വദിക്കുന്നതിനും ലൗകിക വസ്തുക്കളുടെ ശേഖരണത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹമില്ലാതെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. ലൗകിക വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് അതേ പ്രവൃത്തികളെ ജ്ഞാനിയുടെ മേൽ ചുമത്തുന്നതിലൂടെ ജ്ഞാനിയായ ഒരു വ്യക്തിയും അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് കാണാൻ കഴിയും. കർത്താവാകാതെ തന്നെ ജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ ഇഷ്ട അനിഷ്ടങ്ങൾ, അഹങ്കാരം എന്നിവ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകുന്നു. അതിനാൽ അവ വെറും ശ്രമങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അവയെ കർമ്മം എന്ന പേരിൽ വിളിക്കാനാവില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം పూర్ణమాగట్టే. జై సద్గురుదేవ్, జై పదిశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసద ప్రసత్ మహాత్మా శ్రీ శివాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 3 కర్మయోగము శ్లోకం 33. సదృశం చేష్టతే స్వస్వాహ ప్రకృతిర్జ్ఞానవానపి ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహ కిం కరిష్యతి. సర్వప్రాణులు ప్రకృతిబద్ధమైనవి అనగా తమ స్వభావమును అనుసరించి పరవశంతో కర్మను ఆచరిస్తూ ఉంటాయి. జ్ఞానులు కూడా తమ ప్రకృతి అంటే పూర్వజన్మ సంస్కారం అనుసరించియే కర్మలు ఆచరిస్తూ ఉంటారు. అటువంటిప్పుడు ఎవరి మొండి పట్టుదలైనా ఏం చేస్తుంది? సమస్త నదులేందుల నీరు తమ స్వభావము అనుసారముగా సముద్ర దిశగానే ప్రవహిస్తాయి. వాటి ప్రవాహమును బలవంతంగా నిరోధించుట ఏ విధంగా సాధ్యం కాదో అదేవిధంగా సమస్త ప్రాణులు తమ తమ ప్రకృతి ఆధీనంలో ఉండి జన్మాంతరంలో చేయబడిన కర్మల యొక్క సంస్కారములు స్వభావ రూపంలో ప్రకటితపడుతూ ఉంటాయి. ప్రకృతి ప్రవాహంలో పడి ప్రకృతి వైపుగా పోతూ ఉంటాయి. అందుచేత ఏ మానవుడు కూడా బలవంతంగా సర్వదా కర్మలను త్యాగం చేయలేడు. అయితే ఏ విధంగా నదీ ప్రవాహాన్ని ఒకవైపు నుండి మరో వైపుకు మరలించవచ్చునో అదే విధముగా మానవులు తమ ఉద్దేశములను పరివర్తన గావించుకొని ఆ ప్రవాహం యొక్క తీరును మార్చుకొనవచ్చును. అనగా రాగద్వేషములను త్యజించి ఆ కర్మలను పరమాత్మ ప్రాప్తి అందుట్లో సహాయకులుగా చేసుకోవచ్చు. దీని అభిప్రాయం ఏంటంటే కర్మలను నిరోధించడంలో మానవుడు స్వతంత్రుడు కాడు. అతడు కర్మలను ఆచరిస్తూనే ఉండవలను. కానీ సద్గుణములను ఆచరించి తన ప్రకృతిని సంస్కరించుకోవడంలో అతనికి స్వాతంత్రం ఉన్నది. ఎంతగా అతని స్వభావం సంస్కరించబడుతూ ఉంటుందో అంతగా అతని కర్మలు కూడా వాడదనవే శుద్ధి అవుతూ ఉంటాయి. అందుచేత పరమాత్మను శరణ పొంది తమ స్వభావమును సంస్కరించుకోవాలి. తద్వారా ఉన్నతి కలుగుతుంది. సమస్త గుణాతీతుడైన జ్ఞాని కూడా తన స్వభావం అనుసరించియే కర్మాచరణ గావిస్తూ ఉంటాడు. అతని అంతఃకరణలో కూడా పూర్వార్జితమైన ప్రారంభ కర్మల సంస్కారములు ఉంటాయి. వాటిని అనుసరించి అతని బుద్ధి, మనసు, ఇంద్రియముల ద్వారా ప్రారంభ భోగము మరియు కర్మలు లోకకళ్యాణార్థం కర్తృత్వ భావం లేకుండానే చేయబడుతూ ఉంటాయి.
లోకం దృష్టిలో అలా చేయబడే కర్మలు జ్ఞాని యందు ఆరోపింపబడి జ్ఞాని కూడా తన స్వభావరీత్యా కర్మలు ఆచరిస్తున్నాడు అని చెప్పబడుతుంది. జ్ఞానిచే చేయబడే ఆ కర్మలు కర్తృత్వ భావం లేకపోవడం వల్ల, అలా లేకుండా చేయబడడం వల్ల రాగము, ద్వేషము, అహంకారము, మమకారములు ఎన్నడూ లేనివై ఉంటాయి. అందువల్ల అవి పేరుకు మాత్రమే కర్మలు కానీ నిజానికి అవి కర్మలు కావు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై परशरणम. जय गुरुदेव, जय परशरणम. अध्याय 3, श्लोक 33. सर्व प्राणी हे निसर्गावर अवलंबून आहेत, म्हणजेच ते त्याच्या स्वभावाप्रमाणे कर्म करतात. ज्ञानी व्यक्ती देखील त्याच्या स्वभावाप्रमाणेच प्रयत्न करतो. मग यामध्ये कोणाचा हट्टीपणा काय करेल? ज्याप्रमाणे नैसर्गिकरित्या समुद्राकडे वाहणाऱ्या सर्व नद्यांच्या पाण्याचा प्रभाव हट्टीपणाने थांबवता येत नाही, त्याचप्रमाणे सर्व प्राणी त्यांच्या स्वभावाच्या प्रभावाखालील अर्थात जन्मजात केलेले संस्कार जे निसर्गाच्या स्वरूपात प्रकट होतात, निसर्गाच्या प्रवाहात पडलेल्या निसर्गाकडेच जात आहेत. म्हणूनच कोणताही मनुष्य हट्टीपणाने कर्म पूर्णपणे सोडून देऊ शकत नाही. हो, ज्याप्रमाणे नदीचा प्रवाह एका बाजूने दुसऱ्या बाजूला थोडासा वळवता येतो, त्याचप्रमाणे मनुष्य आपला उद्देश बदलून म्हणजेच आसक्ती आणि द्वेष सोडून त्या प्रवाहाची दिशा बदलू शकतो. तो त्या कृती देवाच्या, ईश्वराच्या प्राप्तीसाठी उपयुक्त बनवू शकतो. याचा अर्थ असा आहे की मनुष्य कृती थांबविण्यास स्वतंत्र नाही, त्याला कृती तर ह्या कराव्याच लागते. परंतु प्रत्येकजण चांगल्या गुणांचा आश्रय घेऊन आपला स्वभाव सुधारण्यास स्वतंत्र आहे. जसजसे त्याचे स्वरूप सुधारेल तसतसे त्याचे कर्म आपोआप शुद्ध होतील. म्हणूनच एखाद्याने ईश्वराचा आश्रय घेतला पाहिजे आणि स्वतःचा स्वभाव सुधारला पाहिजे. या प्रकारे त्याची प्रगती होऊ शकते. सर्व गुणांच्या पलीकडे असलेला ज्ञानी मनुष्य देखील त्याच्या स्वभावानुसार कार्य करतो. त्याच्या पूर्वी प्राप्त केलेल्या प्रारब्धाचे संस्कार त्याच्या विवेकात देखील राहतात आणि त्यानुसार मग त्याची बुद्धी, मन आणि इंद्रिये प्रारब्धाचा आनंद घेण्यासाठी आणि सांसारिक वस्तूंच्या संचयनासाठी करता न होता कृती करतात. सांसारिक दृष्टिकोनातून ज्ञानी माणसावर तीच कृती लादून असे म्हटले जाते की ज्ञानी मनुष्य देखील त्याच्या स्वभावानुसार कार्य करतो. ज्ञानी मनुष्य कर्मे करता नसतानाही ती पूर्णपणे आवडी, नापसंती आणि अहंकार आणि प्रेम या नसतात. म्हणून ते केवळ प्रज्ञच असतात. त्याला कर्म म्हटले जात नाही. जय गुरुदेव. सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति. सब प्राणी प्रकृति के प्राप्त होइत अछि, माने अपने स्वभावक अधीन भ क कर्म करैत अछि. ज्ञानवान मनुख सेहो अपने प्रकृति के अनुसार चलैत अछि. तैं एहन अवस्था में हठ की क सकैत अछि. जाहि प्रकार समस्त नदी के जल स्वाभाविक रूप से समुद्र दिस बहैत अछि, तकर प्रवाह के बलजोरी रोकल नहीं जा सकैत अछि, तहिना सब जीव अपन अपन प्रकृति जे जन्म जन्मांतर में कयल गेल कर्म के संस्कार जे स्वभाव में दिखाई पड़ैत अछि, तकर अधीन भ क प्रकृतिक प्रवाह में पड़ल रहैत अछि आ ओहि प्रवाहक संग बहैत रहैत अछि. तैं कोनो मनुख हठ सँ कर्म सँ पूर्ण रूपेण विरत नहि भऽ सकैत अछि. जेना नदी के धार के एक दिस सँ दोसर दिस घुमाओल जा सकैत अछि, तहिना मनुख अपन उद्देश्य बदलि कऽ प्रवृत्ति के दिशा मोड़ि सकैत अछि. राग द्वेष के त्याग अपन कर्म के ईश्वर प्राप्ति के साधन बना सकैत अछि. एकर माने ई भेल जे कर्म रोकबाक स्वतंत्रता मनुख के नहि अछि. कर्म तऽ करैये पड़त, मुदा सद्गुण के आश्रय लऽ कऽ
अपन प्रकृति के सुधार करबा के स्वतंत्रता सबके अछि। जेना जेना प्रकृति के सुधार हैत तेना तेना कर्म विशुद्ध होइत चल जायत। तैं भगवानक शरण में अपन स्वभाव के सुधार करऽ के चाही, ऐसा उत्थान होइत अछि। समस्त गुण सँ ऊपर उठि चुकल ज्ञानी मनुष्य सेहो अपन प्रकृति के अनुसार व्यवहार करैत अछि। ओकर अंतःकरण में पूर्व जन्म सँ अर्जित प्रारब्धक संस्कार रहैत अछि आ ओहि संस्कारक प्रभाव सँ ओकर बुद्धि, मन आ इंद्रिय सब प्रारब्ध भोग आ लोक संग्रह लेल बिना कोनो कर्तापन के भावना सँ काज करैत रहैत अछि। लोक दृष्टि सँ जे क्रिया सब ज्ञानी सँ होइत देखाइत अछि ताहि पर अध्यारोप कहल जाइत अछि जे ज्ञानी सेहो अपन प्रकृतिक अनुसार चलैत अछि। मुदा वास्तव में ज्ञानी के क्रिया सब में कर्तापन, राग, द्वेष, ममता नहीं होइत अछि। ओ तऽ चेष्टा मात्र अछि, तैं ओकरा कर्म नहीं कहल जा सकैत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।